स्पीकर मैम, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में बात करने के लिए मौका दिए हैं। मैं सबसे पहले पहलगाम अटैक में जितने भी लोग के शहादत हुए हैं उन सब के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उनमें 3 लोग कर्नाटका से थे और मेरे संसदीय क्षेत्र से 2 लोग थे। उन सभी परिवार के प्रति मैं मेरा संवेदना व्यक्त करता हूं। मैडम स्पीकर, ऑपरेशन सिंदूर led by the Indian Army showed the world that no terrorist is safe anywhere in Pakistan. वो जहां भी हो भारत उनको ढूंढेंगे and भारत उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। This was the resolve that भारत सरकार under the leadership of Narendra Modi displayed during Operation Sindoor. मैडम, ऑपरेशन सिंदूर के जो मिलिट्री एक्शन था वो इससे पहले के सभी मिलिट्री एक्शन से बहुत फर्क है इसमें और सबसे पहले में। This action was a new generation warfare, unlike all earlier warfares which were more conventional. In this we had foreign supplied drones, unmanned aerial vehicles, precision guided missiles, electronic warfare, a deceptive information warfare. ये सब चल रहा था। And the strength of the Indian armed forces was proved to be second to none in the world because 80% of Pakistani weapons are imported from China, and it was India's air defense systems that had the ability to pierce through these Chinese defense systems, and we could reach our targets, the intended targets, in a precise way. The world today has accepted that India's military action through Operation Sindoor is a comprehensive and total military success. It was precise, it was non-escalatory, but at the same time it had devastating effects on the enemy. All of these years, no cost was paid by Pakistan for their misadventures. But since 2014, the new normal has changed, and if Pakistan dares to attack India, they will have to not bear the brunt of one eye for both the eyes, not one tooth for another tooth, but both the eyes for one eye, the whole jaw for one tooth. This is the new normal that Bharat has established. Madam Speaker, इससे पहले जब भी भारत मिलिट्री एफर्ट के माध्यम से अचीवमेंट हासिल किए थे, हम डिप्लोमैटिकली ऑन द डिस्कशन टेबल हमने उसको स्क्वैंडर कर दिए थे। कई सारे उदाहरण इतिहास में 1948 में जिसका उल्लेख कई बार आया, our armed forces had breached the LOC, and all of what is today known as Pak-occupied Kashmir was in our control. But it was this Congress party and its leadership of that time that surrendered all of Pak-occupied Kashmir. What military achievement we had gained, we squandered on the diplomatic table. 1965 में भी वही हुई, 1971 में भी वही हुई. But the difference this time is the military achievement that we achieved in Operation Sindoor was crystallized and strengthened through our diplomatic onslaught that was led by the multi-party delegations and effectively led by the Prime Minister and the External Affairs Minister. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने TRF को डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रोस्क्राइब कर दिया है। मैं उस डेलीगेशन में पार्ट था जिसमें शशांक जी भी मेरे साथ थे, शशि जी के नेतृत्व में। हम कोलंबिया में थे। कोलंबिया had given a statement in support of Pakistan. After our intervention, Colombia withdrew its statement and gave a statement in favor of India. Every country in the world which matters has stood with India. This is the diplomatic strength that has been gained. Madam Speaker, मुझे परशुराम जी की एक युक्ति याद आ रहा है। उन्होंने कहा था,
अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतम सशरम धनुः इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शास्त्रादपि शरादपि। उसी प्रकार से आज भारत डिप्लोमैटिकली हो, मिलिटरीली हो, दोनों युद्ध में तैयार है। एंड वी आर रेडी टू विन एट द डिप्लोमैटिक फ्रंट, वी आर रेडी टू विन एट द मिलिट्री फ्रंट। मैडम स्पीकर, आज जितने भी कांग्रेस के अपने साथियों से भाषण हमने सुने, बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता चेंज होते हैं पर कांग्रेस पार्टी का नीति वही है। 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो भारत को और भारत के सशस्त्र बल को सिस्टमैटिकली और डेलिबरेटली वीक करने का एक पॉलिसी है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, एट द डॉन ऑफ दिस नेशन एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, पंडित नेहरू जी की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि भारत को आर्मी का जरूरत ही नहीं है। जनरल लॉकहार्ट के पास बैठते हैं और नेहरू जी बात ये बोलते हैं कि रबिश, टोटल रबिश, नो प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड, इंडिया का पॉलिसी इज अहिंसा, वी डोंट नीड द आर्मी, पुलिस विल डू इट्स जॉब। ये नेहरू जी की सरकार की स्टेटेड पॉलिसी थी। And this did not remain isolated in 1947. When A.K. Anthony ji was the defense minister, it was the stated policy. Madam, my party has allotted me 15 to 20 minutes time. Please give me the time given by my party. Madam, they had a deliberate policy of not building border infrastructure. और देश के आर्मी में जाति गणने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और मैं बैंगलोर से आता हूं और बैंगलोर के HAL हो, DRDO हो, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली इन लोगों ने वीकन किए थे। 10 साल पहले HAL के पास ऑर्डर बुक्स नहीं था। आज HAL के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑर्डर बुक्स मेक इन इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मेड इन इंडिया के कारण के वजह से है। इट वॉज अ डेलिबरेट कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी टू वीकन द आर्म्ड फोर्सेस। मैडम, रफाल की बात हो रही थी। द कंट्री रिमेंबर्स हाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन in an extremely irresponsible fashion tried to derail the acquisition of the all-important Rafale, and they also tried to derail the acquisition of Tejas into the armed forces. If it was not for our defense minister Manohar Parrikar, today LCA Tejas would not have been a reality in this country. They had tried to kill all of these made in India defense projects. Madam, 3 साल पहले जनरल बिपिन रावत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश को बताया था that India should be ready to face a 2.5 front war. मैं आज इस देश को इस महत्वपूर्ण सदन से बताना चाहता हूं कि दिस 0.5 फ्रंट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इसके इकोसिस्टम है जो भारत के अंदर से भारत को खोखला करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं मैडम, और मैं तथ्य के साथ इसको प्रूव करूंगा। मैडम, आज कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के बार इतना बड़े बड़े बात कह रहे, बड़े बड़े बात, बट व्हाट हैज बीन द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स टेररिज्म? मैडम, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2004 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट दे डू? It was to repeal the POTA Act. 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री वी इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। मैडम, आप भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। आई वांट टू रिमाइंड यू, मैडम, व्हेन राजीव गांधी, हाँ मैडम, व्हेन राजीव गांधी का ट्रायल चल रहा था, राजीव गांधी जी का ट्रायल चल रहा था, मैडम,
जब राजीव गांधी जी की डेथ की, टेररिस्ट से हुई डेथ की ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट सेड वी डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव टेरर लेजिस्लेशंस टू प्रोसिक्यूट. दिस वाज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ दिस कंट्री. 2001 के बाद हमने पोटा कानून लागू की, पर आप सरकार में आते ही पहली चीज आपने पोटा को दुरुस्त किया. यू रिमूव्ड पोटा. और क्यों किया आपने? आपके वोट बैंक के कारण आपने पोटा को बंद किया, और उसके बाद 10 साल देश हर दिन टेररिस्ट अटैक रूटीन बन गया था देश में. मैडम, मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूं. अब देखिए, पोटा को खत्म करने के वजह से इस देश पे किस प्रकार की नुकसान है. जुलाई 5, 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि में टेररिस्ट अटैक हुई. आपने क्या की? निंदा की. 2005 जुलाई 28 जौनपुर श्रमजीवी एक्सप्रेस पे बॉम्बिंग हुई. 15 लोग से अधिक लोगों का मृत्यु हुई. आपने क्या की? निंदा की. अक्टूबर 29 दिल्ली, दिसंबर 2005 बेंगलुरु IISc, फरवरी 2006 गुजरात अहमदाबाद स्टेशन में बॉम्बिंग. 2006 मार्च वाराणसी कंटोनमेंट स्टेशन. जुलाई 11 2006 मुंबई महाराष्ट्र ट्रेन बॉम्बिंग, 300 से अधिक लोग की मृत्यु हुई. मालेगांव महाराष्ट्र 2006, पानीपत हरियाणा 2007, हैदराबाद मक्का मस्जिद बॉम्बिंग 2007, अगस्त 2007 हैदराबाद में फिर से लुंबिनी गार्डन के गोकुल चाट पे बॉम्बिंग. लखनऊ में बॉम्बिंग 2008 पे, रामपुर पे, उत्तर प्रदेश पे बॉम्बिंग. सितंबर में दिल्ली में करोल बाग पे बॉम्बिंग. 2008 दिल्ली में सितंबर 27 में बॉम्बिंग. इसे लिस्ट जाते रहते हैं. In just 10 years of the UPA government between 2004 and 2014, more than 8,000 civilians were killed because of terrorist attacks in this country. 8,000 terrorist civilians were killed. आपने NIA को वीक किया. आपने जो कानून था वो कानून को ध्वस्त किया. और सुनिए, मैं बताता हूं आपको हमने कैसे NIA को मजबूत किया. Madam, it was this deliberate ploy of weakening this country from within, by deliberately weakening the institutions of this country, that led to 8,000 innocent civilians killed because of terrorist attacks. And this was also the position in Kashmir. Every Friday there was toll painters. Every Friday there was a plan for the next calendar of terrorist attacks. It was only after Amit Shah ji introduced the Constitution Amendment Bill to remove Article 370 that has seen a great decline of terrorist attacks in Jammu Kashmir. It happened in our government, अपने सरकार की नेतृत्व. मैडम, 2004 में when Congress repealed POTA, what were governments of the world doing? 2001 में 9/11 की अटैक्स हुई थी. 9/11 के अटैक के बाद विश्व में हर देश अपनी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को टेररिज्म के खिलाफ उनके फाइट को और ताकत दे रहे थे. बट हियर वी हैड अ गवर्नमेंट इन इंडिया, अनफॉर्चुनेटली, दैट deliberately as state policy chose to weaken the fight against terrorism. 2004 में there is only one political party in the whole world which chose deliberately and very thoughtfully to repeal an anti-terror legislation, and the disfamy of that happens to the Congress party. This, the history of the country will remember it. Madam, आज सरेंडर के बारे में बात हो रही है. मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री एक इंटरव्यू में बोले, 1965 में जब शास्त्री जी की सरकार थी तब सोवियत यूनियन के इंटरवेंशन के साथ हमने सीज फायर किए थे. सो उन्होंने बोले कि हमने एक्सेप्ट कर रहे हैं, we are accepting that the Soviet Union had actually created the ceasefire. Why are you not doing it? Madam, I want to remind the Congress party
that the Bharatiya Janata Party and the leadership under Narendra Modi is not habituated like you to perform actions for the country on the behest of foreign forces. Or 2008 mein, there is a very interesting speech of Arun Shourie ji. Madam, I'll conclude in 3 minutes. There is a very interesting speech of Arun Shourie ji. आजकल अरुण शौरी जी का कई सारे स्टेटमेंट्स इन लोगों ने कोट कर रहे हैं. अरुण शौरी जी ने बताया था जब उन्होंने राज्यसभा में बात कर रहे थे that the government should stop running to mummy. Mummy he meant was the United States. And I want to remind again today that the Congress party, especially under its present leadership, should stop running to mummy, because mummy tak jana, mummy pe nirbhar hona is party ke netaon ka, is party ke pure parampara ban gaya hai. This is a country that will stand on its own feet and respond in its own right. Madam, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री जी के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑपोजिशन ने उठा रहे हैं. And in a very shameful manner, in a very irresponsible manner, the leader of the opposition is using and coining the word surrender and surrender. Madam, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी is the defender of India and you are the surrendering forces of the country. Madam, आप 30 सेकेंड दीजिए, मैं कंक्लूड कर रहा हूं. उरी अटैक जब हुई थी या बालाकोट अटैक जब हुई, हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने मारे. नरेंद्र मोदी शोड ही इज द डिफेंडर ऑफ इंडिया. आपने जब सोवियत यूनियन के दबाव में 1965 में आपने सीज फायर घोषित किए थे, यू हैड सरेंडर्ड. दैट इज सरेंडर एंड दिस इज डिफेंडर. ये फर्क है. पीएम मोदी ने राफेल खरीद, हमने मैडम 30 सेकंड में, मैडम 30 सेकंड दीजिए प्लीज. हमने तेजस को इंडक्ट किया. दिस इज डिफेंडर. आपने फॉरेन पावर्स के सामने भारत को आपने सरेंडर किया. दिस इज योर हिस्ट्री. मैडम, PM defended India's interest by providing indigenous strength to India's Make in India defense sector. You surrendered it to China and other adversaries, including important emerging technologies like 3G and 4G. This is the surrender of the Congress party. Madam, मैं आपको, I'm going to call the next speaker now. Madam, in the end I want to say this. We hope. Please. Madam, मैं conclude कर रहा हूं. Madam, the Congress party's thinking has not changed. 2001 में टेररिस्ट अटैक पार्लियामेंट में होने के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम जी ने कहे थे, मैडम 1 second, hear this out. He had said, I will give a benefit of doubt to Afzal Guru, and I doubt if he was involved in the terrorist attack. And they बोलिए.